Jai Hind aspirants, I hope you all are doing well. So here I am with the current affairs of 19th of October 2023. So let's dive into the current affairs and let's see what's there in today's news. So first thing first, which is a very you can say crucial news, that is quantum algorithms. So nowadays, if we talk about AI is everywhere. Okay, every new technology is changing on a daily basis. So if we talk about the classical computers, they struggle with some complex problems like large level data entries or things like that. So in those type of analysis, we can use the quantum computers or quantum computing. So if we talk about quantum computing, it utilizes the principles of computing that are from the principles of the quantum mechanics. So quantum mechanics के जो principles हैं उस पे ये चलते हैं and ये जो है ये quantum bits जो कि qubits होते हैं और उनके जो प्रिंसिपल्स है जैसे सुपरपोजिशंस और उसके अलावा बाकी सारे जो प्रिंसिपल्स है क्वांटम मैकेनिक्स के वो आई विल टेल यू बिकॉज like I have done my graduation in that field only, so I can help you out and to make you enable to understand this thing. So for the future, this particular thing is extremely important because it will help in optimization of data. It will help in drug design. It will help in like architecture. It is going to help you out in almost all the fields possible, all the professional fields possible in the upcoming times, pattern research and whatnot. So if we talk about the quantum algorithm, as I told you, that they are based upon the principles of quantum mechanics. And if we talk about in this type of quantum algorithms, so there are some breakthroughs. Like for example, the Shor's algorithm. So Peter Shor was one of the like pioneer in this. So Shor's algorithm, it tells about the polynomial efficiency. Then came the Love-Grover's algorithm. Love-Grover's algorithm, if you talk about, so it digs deep into exponential speed up and scalability of extensive data sets. And if we talk about Deutsch-Jozsa algorithm, so it distinguishes between relation demonstrating quantum computing's ability to achieve tasks in a single computation. So these are the breakthroughs. If you cannot remember the name, it's okay. Just have a brief idea about these and you can quote them in your GS paper 3 answers. And as I told you that the creep principles which are used in quantum algorithms, they are from the quantum theory. So क्वांटम थ्योरी क्या होती है? मूवीज में आपने काफी बार सुना होगा कि क्वांटम थ्योरी होती है, कुछ इस तरह की चीजें होती है, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में सुना होगा. क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स की अगर आप बात करें तो वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जो बिहेवियर बताती है मैटर का और एनर्जी का एट द स्मॉलेस्ट स्केल्स. अब इसके जो की प्रिंसिपल्स हैं वो है वेव पार्टिकल डुअलिटी. जैसे लाइट शो करती है, लाइट एक्ट्स एज अ पार्टिकल, लाइट एक्ट्स एज अ वेव. Similarly, if you talk about electrons, photons, they all exhibit the similar kind of behavior just like the light. सुपरपोजिशन. तो सुपरपोजिशन क्वांटम फिजिक्स में ये कहती है कि क्वांटम पार्टिकल्स जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में साइमल्टेनियसली रह सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, या सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड और गैस में. तो एक टाइम पे जब तक उस उनको ऑब्जर्व किया जाए तब तक वो रह सकते हैं दो कंडीशन में एट द सेम टाइम एंड दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन. देन कम्स द प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड एज इंटेंगलमेंट. इंटेंगलमेंट ये है जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटेंगल्ड हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो. एक तरह से आप देख लो फिजिक्स के टर्म्स में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. ठीक है, व्हेन यू आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंसेस बट स्टिल one particle is dependent upon the state of the other, so that is quantum entanglement. And talking about quantization, so quantization ये एक मतलब लाइक आप किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करो, जैसे एनर्जी लेवल इन एटम्स वो क्वांटाइज होते हैं. इसका मतलब है कि वो सिर्फ डिस्क्रीट स्पेसिफिक वैल्यूज को ही ले सकते हैं. अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको आइडिया होगा इस बारे में. अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो ये चार डेफिनेशंस को आप एक बार देख लीजिएगा. दैट्स मोर देन एनफ एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर जीएस पेपर 3. Moving ahead to one of the remarkable news which came yesterday, that is क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या हुआ,
एमएसपी को इंक्रीज कर दिया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने राबी क्रॉप्स पे इंक्रीज कर दी गई। अब राबी क्रॉप्स पे ही क्यों हुआ, उसके विषय पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बट पहले ये देख लेते हैं कि एमएसपी इंक्रीज कौन किया है, कैसे होता है और क्या क्या चीजें कंसिडर की जाती हैं। सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसकी घोषणा करी थी कि 23 राबी क्रॉप्स के लिए 2024-25 में एमएसपी को इंक्रीज किया जाए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह होते हैं, लीगली मैंडेटेड नहीं होते, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए एमएसपी की घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये डिटरमाइन कौन करता है, ये सीएसीपी डिटरमाइन करती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। और ये कंसिडर करते हैं ये तीन फैक्टर को, ए टू प्लस एफ एल और C2। अब ये सब क्या है, ए टू जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं एग्रीकल्चर के। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि आपका सीड्स, फार्मर, फर्टिलाइजर्स, लैंड लीज, फ्यूल, इरिगेशन, इन सब में जो खर्चा आया दैट इज गोइंग टू बी इन ए टू। ए टू प्लस एफ एल, इट इज ए टू के जितने भी आपके खर्चे हैं उसके अलावा आपका जो फैमिली लेबर इसमें इंक्लूड हुआ है, जिसको आपने पेमेंट नहीं दिया है आपके परिवार में। जैसे मान लो एक किसान है, उसके 4 बच्चे, उसने 3 बच्चों को खेती में लगा दिया, उनको सैलरी थोड़ी देगा वो, तो वो A2 + FL में इंक्लूड होगा। एंड C2 की बात करें तो दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें इट इज गोइंग टू बी लाइक रेंट्स और जो फॉरगॉन इंटरेस्ट हैं उन सबको भी इंक्लूड किया जाता है A2 और FL के अलावा, जैसे C2। और जो एमएसपी कैलकुलेट होती है, तो 2018-19 के बजट में एक फॉर्मूला दिया गया था जिसको बोला गया था 5 टाइम्स फॉर्मूला। सो ये इंश्योर करता है कि एमएसपी 1.5 टाइम्स होनी चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट की, एज सिंपल एज दैट। तो उससे चीजें काफी सिंपल हो गई हैं। और काफी सारे फैक्टर्स इसमें देखे जाते हैं, जैसे कि मार्केट डायनामिक्स देखी जाती है, क्रॉप पैरिटी देखी जाती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन सबको कंसिडर किया जाता है। बट अभी के लिए राबी क्रॉप्स में क्यों हुआ, क्योंकि आई गेस आप में से मेजोरिटी ऑफ द लोगों को पता होगा कि राबी क्रॉप्स कब कटती है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आप इस टेबल को देख लीजिएगा। राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स, इंडिया में इन 3 तरह की क्रॉप्स मिलती है। तो ग्रोइंग सीजन इनका विंटर में होता है और इनका हार्वेस्ट सीजन होता है स्प्रिंग में। और स्प्रिंग में क्या है, इंडिया में इलेक्शन है, तो एमएसपी बढ़ा के क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी जो भी है, जो रूलिंग में है, उनको किसानों का समर्थन मिल जाएगा। फार्मर्स आर अ ह्यूज वोट बैंक इन अवर कंट्री। अब इलेक्शंस मान लो सर्दियों के टाइम पे होते हैं, तो खारिफ क्रॉप्स में एमएसपी बढ़ती है, एज सिंपल एज दैट। खारिफ क्रॉप की बात करें तो उनको मानसून में उगाया जाता है, जैसे चावल को वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप्स होती हैं, और इनको ऑटम में हार्वेस्ट किया जाता है। जायद क्रॉप्स की बात करो तो उनको समर में, फरवरी अप्रैल के बीच में सो किया जाता है, और अर्ली ऑटम में, मतलब मई जून में, इनको काट लिया जाता है। एग्जाम्पल आप देखो, राबी के तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम। खारिफ के देखो तो राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन, ककम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब जायद के एग्जाम्पल्स हैं। राबी क्रॉप्स मेनली रेनफॉल पर डिपेंड करती है। खारिफ क्रॉप्स की अगर आप बात करो तो मानसून की रेन पे, और जायद क्रॉप्स की बात करो तो वो इरिगेशन और सप्लीमेंटल वाटर पे डिपेंड करती है। राबी क्रॉप्स कूलर टेम्परेचर्स में ग्रो करती है, खारिफ वार्मर टेम्परेचर्स में, और जायद हॉट टेम्परेचर में। और क्रॉप रोटेशन की बात करो तो खारिफ क्रॉप को क्रॉप रोटेशन के लिए यूज किया जाता है, सॉरी, राबी को, खारिफ को नहीं किया जाता, मतलब किया जाता है बट उतना ज्यादा नहीं। एंड जायद क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो दे आर यूजुअली नॉट द पार्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन, एज सिंपल एज दैट। एंड दिस न्यूज once again it is extremely important for your prelims and for your GS paper 3. Now moving ahead to one more technical term which you should keep in your mind, that is OCCRP. अब OCCRP क्या है, अभी रिसेंटली क्या किया सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने की डॉक्यूमेंट्स मांगे, किससे, ओसीसीआरपी। ओसीसीआरपी क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग द एलिगेशन ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड अगेंस्ट द अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप पे एलिगेशन लगाए गए हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट पीपल दैट दे आर डूइंग स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड। तो उसके लिए ओसीसीआरपी से सेबी ने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को मांगा है। अब ओसीसीआरपी क्या है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन विद 50+ इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स ग्लोबली, और इसको 2006 में बनाया गया था। तो इसकी अगर आप बात करें ओसीसीआरपी की, तो इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिससे
डेटा प्रोवाइड होता है इनको OCCRP-LF से, विच इज एन इन्वेस्टिगेटिव डेटा प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो ये मोर देन 100 इन्वेस्टिगेशन एनुअली करती है, और इनका विजन क्या है कि आने वाले टाइम पे जो भी दुनिया में ट्रेड्स हो रहे हैं या इस तरह की चीजें हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, करप्शन और क्राइम कम हो, और लोगों में अकाउंटेबिलिटी बढ़े। दिस वाज अबाउट OCCRP। दिस न्यूज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज, बट उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आई गेस you all must be having your Aadhaar cards, right? But now, as you are a student, get ready for one more card that is called as the APAR card. One nation, one ID for all students. So, what is APAR card? APAR card is Automated Permanent Academic Account Registry. As simple as that. So, Union Education Ministry has initiated this program that is called as APAR ID, which is going to be a unique ID for students from pre-primary to higher education, ताकि आपके एजुकेशनल चीजों को ट्रैक किया जाए, ताकि कल को अगर आप कभी लाइक सपोज इफ यू बिकम अ मिनिस्टर और इफ यू बिकम एन IAS, तो कल को कोई आपकी डिग्री पे सवाल ना उठा पाए। तो अपार कार्ड एक तरह से डिजी लॉकर जैसे होता है ना, तो उसी तरह से एक और चीजें एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री को स्टार्ट किया गया है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक एडू लॉकर है। जैसे डिजी लॉकर आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखता है, अब अपार कार्ड आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखेगा। इसमें आपके एग्जाम रिजल्ट्स, को करिकुलर अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेट्स को डिजिटली ये स्टोर करेगा, ताकि आपके एम्प्लॉयमेंट में, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में, स्कूल ट्रांसफर्स में, इन सब में थोड़ी ईज आए। और ये जो डेटा है वो सिर्फ रेलिवेंट गवर्नमेंटल एजेंसीज के साथ ही शेयर किया जाएगा, जिससे डेटा सिक्योरिटी और पेरेंटल कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इंश्योर। एज सिंपल एज दैट। तो ये जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वो स्कूल कैरी आउट करेगा along with the consent of the parents of the students, and they will be able to withdraw this at any point of time whenever they want to. So this was about a par card. So this news once again is extremely important for your prelims, for your essay, and for your GS paper 3. So keep that in your mind. So now let's test ourselves through some previous year's questions. So the first question for today is coming directly from the 2018 prelims, that which of the following best describes the term merchant discount rate sometimes seen in news? The initiative given by a bank to a merchant for accepting payments through debit cards pertaining to that bank, the amount paid by banks to their customers when they use debit cards for financial transaction for purchasing goods and services, the charge to a merchant by a bank for accepting payments from his customers through the bank's debit cards, the incentive given by the government to the merchants for promoting digital payments by their customers through POS machines and debit cards. Pause the video, think about it. And yes, you are absolutely correct. The correct answer is C. It is the charge to a merchant by a bank for accepting payments from his customers through bank's debit cards. As simple as that. Moving ahead to the next new question, sorry, not the news, once again from the 2018 prelims, that with reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statement. Capital infusion into public sector banks by the government of India has been steadily increased in the last decade. To put the public sector banks in order, the merger of associate banks with the parent State Bank of India has been effected. Which of the following statement is or are correct? Think about it, pause the video and try to answer it. And yes, you are absolutely correct. The correct answer for this is B2 only. First statement is wrong over here. So that's all from my side, students. I hope that you all enjoyed this session, found it informative, and learned something new. So at the end, as usual, I just want to say that study hard, practice hard, and have a wonderful day, guys. Stay healthy, stay awesome, because you all are awesome. So bye bye, take care, and see you soon.